एस्पिरेंट्स टाइम ले सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ लेस टू सेल टू एन इंटरव्यू बोर्ड और टू योर फैमिली और टू योर पीयर ग्रुप। इट इज़ मोर अबाउट आप अपने आप को किस तरीके से सिविल सर्विसेज में देखते हैं और इस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर सम NGOs, लेकिन NGOs सारे फ्लाई बाय द नाइट थे कि उदयपुर पास ज़िला पड़ता था, दे विल टेक अ फ्लाइट टू उदयपुर, spend half an hour in Dungarpur, get those photographs clicked and then be back in the palaces and the hotels in Udaipur। आज मान लीजिए अगर किसी महिला की पेंशन 60 साल के बाद बढ़ के 70 साल में बढ़नी है तो हमारा डेटा हमारे पास है, हमें पता है कि उनकी पेंशन इतने रुपए से बढ़ के इतनी होनी है। शी शुड नॉट बी मेड टू स्टैंड इन द लाइन। गवर्नमेंट बाय नेम शुड इवोक फेथ, by name it should evoke trust, and that is where the role of government becomes critical. Today with us we have Inderjeet Singh, a 2010 batch IAS officer from the Rajasthan cadre. He is currently serving as the managing director of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Cooperation. He has previously served as the commissioner of Department of IT and Communication. Prior to this, he has also been district magistrate of various districts such as Chittorgarh, Jodhpur and Alwar. In this episode of Sushasan, we will be discussing his role in implementing the business model on renewable energy in Dungarpur, empowerment of girl child in Chittorgarh through the Udan initiative, conducting free and fair elections in Rajasthan, and much more. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome, Inderjeet Singh ji, to this episode of Sushasan. It's a pleasure hosting you today on this episode. Thank you, Venkatesh. So, इससे पहले कि मैं आपके पूरी जो जर्नी रही है 14 साल की जर्नी ऑफ बीइंग एन IAS ऑफिसर, उसके अलग अलग पहलुओं को हम लोग डिस्कस करें, आई वुड फर्स्ट लाइक टू नो कि 2010 से पहले जब आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू की होगी, व्हाट वाज द की मोटिवेशन टुवर्ड्स गिविंग द एग्जाम? सो देखिए, मैं 12वीं तक मैं पंजाब में गुरदासपुर जो मेरा होम टाउन है वहीं था। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं दिल्ली आया, और दिल्ली जब मैं था तो मैं पहले दूसरे वर्ष के अंदर मैंने महसूस किया कि पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनके बारे में और जानना चाहिए, चाहे वो डिबेटिंग थी, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस थे, चाहे वो एक्सपोजर था, ट्रैवल था। वो करते करते कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया कि करियर चॉइस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग करके मोस्ट लाइकली मैं एक टेक्निकल जॉब में जाता, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे साल के इंजीनियरिंग में आई हैड डिसाइडेड कि मुझे सिविल्स में जाना है। कारण उसका ये था कि जिस तरीके की बैकग्राउंड से मैं आता था, वहाँ पे सोशल चेंज की क्या इम्पोर्टेंस है एक सिटीज़न, एक इंडिविजुअल, एक समाज के लिए, दैट वाज वेरी क्लियर टू मी, एंड आई वाज लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म्स जहाँ से इस तरीके का काम किया जा सके। So I think from that perspective, there was no other choice except civil services. Right. So what would be your one, big advice to people who are also, in the run-up for preparing for civil services, from your own experiences, किस motivation को वो chase करें while preparing for the same? So I think one and the most important thing is the reason that you want to get into civil services. Aspirants time ले सकते हैं, but I think it is less to sell to an interview board or to your family or to your peer group. It is more about आप अपने आप को किस तरीके से सिविल सर्विसेज में देखते हैं और इस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। There is no doubt that the preparation might be very difficult, but it is even difficult to deliver if we are not committed to the cause. तो मेरा मानना है कि जब तक आप फुली कमिटेड नहीं हैं, तब तक आपको ये कॉल नहीं लेना चाहिए, एंड वंस यू आर इन इट, you should give all your heart in to get into the services. And I think it's a very interesting learning on anything that anyone wants to do, that जब तक आपका उसमें दिल नहीं लगेगा, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, for anything you need to have that commitment to be able to then deliver to the best. Yes. Right. So 14 years of journey जो आपकी रही है as an IAS officer, आपने बहुत अलग-अलग districts में district magistrate रहे हैं. But one thing which has been common when I was even researching about you was that काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव ग्राउंड पे काम किया है आपने, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो आपके सैनिटेशन एरियाज में हो। तो एक एक करके मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो जब आप पहले
वन ऑफ द फर्स्ट पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपकी डूंगरपुर में रही, राइट, जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपने काफ़ी फोकस रखा। आईआईटी बॉम्बे के साथ आपने पार्टनरशिप करी एंड लोकल लोगों को यूज़ करके रिपेयर करना हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर करना हो, चाहे वो असेंबल करना हो आपके सोलर इक्विपमेंट्स, उसको एक तरह से आपने बढ़ावा दिया। तो इफ़ यू कैन लेट अस नो कि क्या ऑब्जेक्टिव था ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एंड ये आइडिया आपके पास आया कैसे? तो देखिए वेंकटेश, आईएएस की लाइफ में कलेक्टर जो प्रोफाइल है वो बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, और पहली बार कलेक्टर लगना तो मेरा मानना है कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू अगेन, राइट। तो जैसे आईएएस में आना अपने आप में एक वाटरशेड पीरियड होता है आपकी लाइफ का, वैसे ही मेरा मानना है जब पहली बार हम किसी जगह पे ज़िले में कलेक्टर लगते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है आपको। और मुझे आज भी याद है जून महीने में 2014 में जब मेरे को ऑर्डर्स मिले थे ज़िले में जाने के, इट मेड मी थिंक, और मैंने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रोफाइल इंडिया में तकरीबन 250-300 साल पुराना है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया, और बहुत रेगुलेटरी एंड बहुत अलग तरीके का प्रोफाइल था ये। इतने साल के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी ये प्रोफाइल सरवाइव कर रहा है। एंड कोई भी आईएएस एस्पिरेंट जब एग्जाम देता है तो कहीं ना कहीं साथ में कलेक्टर के बारे में भी ड्रीम करता है, सोचता है। सो इट ऑलवेज मेड मी थिंक कि इतने सालों के बाद भी ये प्रोफाइल जिंदा कैसे है, और अगर जिंदा है तो इसने इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी आमजन का विश्वास इसमें कैसे अभी तक कायम है। दैट मेड मी थिंक अ लॉट। और जब मैं एज कलेक्टर डूंगरपुर में पहुंचा, इट्स अ वेरी रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एंड वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी, और काफ़ी लोग वहाँ जाने में संकोच भी करते हैं बिकॉज फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है उनकी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा पहला फोकस ये था कि मैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ, बेहतर करूँ। मेरे को तब तक यही एहसास था कि जो भी स्कीम्स अभी तक चल रही हैं उनमें अगर मैं बेहतर करता हूँ, जैसे नरेगा चल रही है, फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स थी, सैनिटेशन था, इन सब पे मैंने बहुत प्रयास किए। और डे इन डे आउट जब भी मैं रिफ्लेक्ट करता था, कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होती थी। मुझे ये लगता था कि ये प्रोफाइल बहुत लिमिटेड समय के लिए मेरे पास है और मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। और जो वर्ड आपने यूज़ किया ट्रांसफॉर्मेशनल, चेंज अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। हालांकि चेंज इज़ कांस्टेंट, लोग कहते हैं नेचर के अंदर ही चेंज समाहित है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में, रेड टेपिज्म में, स्टेटस कोस्ट ब्यूरोक्रेसी में चेंज लाना काफ़ी टफ माना जाता है। सो इट हैड मी थिंकिंग एंड समवेयर आई वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं जिसमें कि भले ही हम लोग सक्सीड ना हो, लेकिन वी शुड मेक एन अटेम्प्ट जहाँ पे पीपल शुड फील दैट रादर देन कट एंड ड्राइड स्कीम्स जो उनको टॉप डाउन अप्रोच में नीचे मिल रही हैं, दे शुड ऑल्सो हैव अ चॉइस फॉर व्हाट दे वांट टू डू। इट वाज इन दैट बैकग्राउंड दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम इनिशिएटिव। एंड जो आपने पूछा, आईआईटी बॉम्बे उस समय पे कुछ ज़िलों के अंदर अक्रॉस द कंट्री एमएनआरई के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलके एक मिलियन सोल नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहा था, जिसके अंदर वो 10 लाख सोलर लैंप राजस्थान के उन ज़िलों में बांटना चाह रहे थे जिन ज़िलों में बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उनके घर में नहीं है, तो उनको अंधेरे में पढ़ना पड़ रहा है। इट वॉज पार्टली फंडेड बाय एमएनआरई, partly funded by the CSR initiative, right? And this thing also came to me when I saw that there was a very senior officer who was traveling in the remote tribal districts, and he was trying to find out how those lamps are doing. And it had me very intrigued, and it had me thinking कि देखिए, दिल्ली से कोई ऑफिसर आके किसी इनिशिएटिव को ढूंढ रहा है और मैं कलेक्टर हूँ इस ज़िले का और मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने काफ़ी इंटरनेट पे खोजा, देखा, and I reached out to the person who was the thinking head behind this thing, Mr. चेतन सोलंकी, प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे में जी। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। हमारी बातचीत हुई, मैंने लीप ऑफ फेथ लेके उनको कॉल किया, मैंने बताया कि मैं कलेक्टर हूँ इस ज़िले का और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे काम करूँ। पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि कोई कलेक्टर उनको इतनी दूर फ़ोन कर रहा है जी। हमें अभी भी याद है, पहली बात हमारी तकरीबन 1.5-2 घंटे हमने फ़ोन पे बात की, और उनको ये एहसास हो गया कि डूंगरपुर में उनको अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर उसके बाद जो हमारी जर्नी शुरू हुई वो बहुत मैं मानता हूँ कि मेरे खुद को बहुत सीखने को मिला, और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी उत्साहजनक रहे। सुंदरजीत जी, व्हाट वर द की इंटरवेंशंस इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? किस तरीके से लोकल लोगों को यूज़ किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी?
सो जैसा मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की जब हम बात कर रहे थे, तो ना केवल कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना था जो उस दूर दराज के इलाके में एक जिज्ञासा, एक क्यूरोसिटी बनाए, उसके साथ साथ फिजिबिलिटी उन इनिशिएटिव्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज एक बार हम लोग 2 कदम पीछे हटते हैं तो कई तरीके के कॉन्फिडेंस और कई तरीके के ट्रस्ट फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ पहले चर्चा की कि आप लोग जो ये केवल सोलर लैंप्स किसी जगह से असेंबल होके केवल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको भी हम टॉप डाउन अप्रोच मानते थे कि कहीं बनेंगे और ट्राइबल्स के पास केवल बांट दिए जाएंगे। तो हमने चर्चा की कि क्यों नहीं हम लोग इसको लाइवलीहुड्स, क्यों नहीं इसको हम विमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाएं। तब तक मैं फेयरली साल 6 महीने उस ज़िले में गुजार चुका था। आई न्यू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई न्यू कहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलता है जिसमें राजीविका हमारा स्टेट का लाइवलीहुड मिशन है। वो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड डूंगरपुर चूँकि एक बिलो पॉवर्टी में बहुत स्ट्रगल और चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको सिलेक्ट किया हुआ था। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो हमने राजीविका को, आईआईटी बॉम्बे को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ जोड़ा और कोशिश यही थी कि लेट अस ट्राई टू डू समथिंग व्हिच हैज़ नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर। तो हमने बहुत सोच समझ के ट्राइबल विमेन को इंक्लूड किया, उनको आगे लाने की कोशिश की एज कम्पेयर टू मे बी ट्राइबल यूथ जो कि मेल मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, जो ऑलरेडी आउटगोइंग हैं, बाहर जाके काम भी करना जानते थे। राइट। सो फ्रॉम वेरी बेसिक सिटिंग्स की राजीविका की महिलाओं के साथ बैठना और उनके साथ पहले सोशल इश्यूज को डिस्कस करना, अल्कोहलिज्म का इशू था, बहुत सारी और समस्याएं थी, उन सब चीज़ों को करते करते जब उनको महसूस हुआ कि ज़िला प्रशासन उनके साथ है, फिर उन्होंने, मेरा मानना है कि हमसे भी ज़्यादा उन्होंने एक ट्रस्ट दिखाया, एक उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। आईआईटी बॉम्बे की पूरी टीम वहाँ पे डूंगरपुर में आई, हम लोगों ने ट्रेन किया, हम लोगों ने असेंबली शुरू की और धीरे 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 मेरा मानता है कि कारवां बढ़ता गया। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो उन महिलाओं ने खुद असेंबली, सोल्जरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, 1 लाख लैंप से ज़्यादा का उन्होंने ये सारा काम देखा। उस कॉन्फिडेंस को, उसको देखते हुए फिर उन्होंने सोलर शॉप्स खोली जहाँ पे वो रिपेयर और मेंटेनेंस शुरू किया उन्होंने। एंड फाइनली आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट अटेम्प्ट वाज मेड जिसमें उन्होंने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया। डूंगरपुर के अंदर तकरीबन 1 करोड़ की लागत से वो प्लांट बना और मेरे ख्याल से पहला इनिशिएटिव अपने काइंड का, और उसी वजह से उन ट्राइबल वुमेन को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो हमारा प्रधानमंत्री सिविल सर्विसेज का एक्सीलेंस अवार्ड होता है वो उनको मिला। तो चाहे रुक्मणी देवी जी हों डूंगरपुर की, चेतन सोलंकी जी हों, इन सब लोगों ने मिलके उस चीज़ को इस लेवल पे लाया कि इट बिकेम अ नेशनल लेवल ऑफ एन इम्पैक्ट। एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पूरे देश में रेप्लिकेट करने के लिए एक हिसाब से एडवाइजरी जारी की। और मुझे बताया गया कि उड़ीसा हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह के ऊपर इस तरीके का एक मॉडल चला। और आज आप जानते हैं कि ट्राइबल विमेन की उस छोटी सी इनिशिएटिव से लेके आज तक, चाहे वो सोलर सहेलीज हों, सोलर मामाज हों, हम लोग आज की तारीख में ग्लोबल आउटरीच रखते हैं, जहाँ अफ्रीका में भी हमारी जो राजीविका की महिलाएं हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, उनको ट्रेन भी कर रही हैं। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग initiative for me myself. And when I see the change that was brought to these women, not only in solar sector or livelihoods, I would say जो हम ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट की बात सोच रहे थे वो रियल में मैंने अपनी आंखों से वहाँ होते देखा। So I think one interesting thing to note here is that start to हुआ था with the objective of including the women of the district into something productive, and eventually इसमें poverty alleviation हो and scaling up of businesses हो या women empowerment हो, all of those things could be established through one initiative essentially. Yes, right. So अगर देखें हम लोग कि इसकी scalability, आपने mention किया कि और जगहों पे ये scale हुआ है. So what do you think is the model through which scaling up can happen across the country? Because आपने बहुत closely monitor किया है इस particular initiative को. So पूरी country में अगर इसको हमको scale करना तो कैसे कर सकते हैं? So देखिए बहुत important सवाल है ये, and that is where we come to systems. Right. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स लगातार हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्केलेबिलिटी है, उनकी जो रेप्लिकेबिलिटी है,
उसके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। नरेगा जो आज इतना बड़ा इनिशिएटिव है वो भी किसी तरीके से ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में आया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो या बाकी चीज़ें, और धीरे धीरे स्केल अप हुआ। मेरा मानना है जब हम लोग बहुत पैशनेटली कोई चीज़ सोच रहे होते हैं उस समय पे हमें बहुत एनालिटिकली भी उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है कि वो क्या होगा जब आप वहाँ पे नहीं होंगे। उसके लिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स इन प्लेस हैं, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो प्लेस में है, तो अगर आप देखें कि तीनों स्टेक होल्डर्स जो हमने इन्वॉल्व किए, हम लोग अगर राजीविका को इन्वॉल्व नहीं करते तो हु आर दोज वुमेन हु आर अटेंडिंग द मीटिंग टुडे एंड हु आर बीइंग ट्रेन्ड टुडे, वो कल हमें पता करना बहुत मुश्किल होता। लाइकवाइज एंकर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई IIT Bombay? Because IIT Bombay housed National Center for Photovoltaic Research that time, and Professor Solanki was leading that. It is not that कि हमें पर्सनल डिस्क्रिशंस को कहीं भी इन सिस्टम्स में काम में लेना चाहिए। सो आई थिंक 3-4 चीज़ें जो मैं समझता हूँ, पहली चीज़ ये है कि पब्लिक के अंदर उस चीज़ की रिसेप्टिविटी है कि नहीं। वी शुड हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक ओपिनियन कहाँ है। आज नरेगा या सैनिटेशन या PM सूर्य घर योजना इसलिए नहीं चल रही है कि कोई सोच रहा है कि ये हम देंगे, ये इसलिए चल रही है क्योंकि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। आज टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया में किसी प्राइवेट फर्म की इजाद की हुई चीज़ नहीं है, बिकॉज पीपल वांट टू बी कनेक्टेड। सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इज कि पब्लिक में उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। सेकेंड थिंग देन इज दैट वी शुड प्लान and bring together those stakeholders which can create a win-win scenario, right? आज राजीविका अगर इस तरीके के मैंडेट से उसको आगे नहीं बढ़ना है तो हम चाह के भी उनको एक पॉइंट के बियॉन्ड यहाँ नहीं रख सकते। Likewise IIT Bombay, likewise district administration. So once we have put in stakeholders, and then I think it has to be feasible. We cannot be draining resources under the pretext कि हम कोई नवाचार कर रहे हैं। So नवाचार इन सरकारी सिस्टम्स इज अ वेरी ड्रेडेड वर्ड ऑल्सो। हर कोई नवाचार तो करना चाह रहा है, लेकिन उसकी हेड और टेल कहाँ है और कहाँ उसका अंत हो रहा है ये नहीं पता चलता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का रिकग्निशन हो, चाहे वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने इंटरेक्शंस देखे हों, हर लेवल के ऊपर फिजिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को बहुत सिस्टमेटिकली देखा गया, और मेरा ख्याल से वही कारण है कि इसको रेप्लिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मैंडेट दिया। सो आपने MG नरेगा के बारे में बात करी। सो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उस पर भी आपने काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया था डूंगरपुर में ही, राइट? सो वन ऑफ द की इंटरवेंशंस वाज टू प्रमोशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन थ्रू MG नरेगा। तो नरेगा तो बहुत समय से चलता आ रहा है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, एंड हर साल बजट में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उस पर बजटरी आउटले रहता है। इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग विच लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग क्वेश्चन कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपने ऐसा क्या क्या इंटरवेंशंस किए, एंड उससे पहले अगर आप बता पाएं कि क्या चैलेंजेस फेस हुए आपको ऑन द ग्राउंड कि नरेगा में इतना पैसा आ रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा ढंग से? राइट। तो जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि डूंगरपुर सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बहुत एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। तकरीबन 40-50% से पॉपुलेशन उस समय पे पॉवर्टी लाइन के साथ स्ट्रगल कर रही थी, और डूंगरपुर वाज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे नरेगा इम्प्लीमेंट हुआ था। नरेगा 2006-07 के आसपास लॉन्च हुआ और 200 जिलों से शुरू किया गया, बाद में धीरे धीरे उसको सब जगह लाया गया। तो डूंगरपुर इन राजस्थान वाज वन ऑफ द फर्स्ट 200 डिस्ट्रिक्ट्स। तो डूंगरपुर में जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि पब्लिक डिमांड जो थी, बिकॉज डूंगरपुर को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड के जो मेल मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। तो आप देखेंगे कि डूंगरपुर के जो लोग हैं वो गुजरात में, वो महाराष्ट्र में और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स के अंदर मैनुअल अनस्किल्ड लेबर पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही इस तरीके की कोई स्कीम आई, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर उत्साह था, बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे करते हुए एक सिस्टम्स इस्टेब्लिश हुए। इनिशियली इवन कैश से भी वेजेस पे होती थी, और जैसे मैंने आपको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कहा, जो नरेगा आज डायरेक्टली बैंक में उनके खाते में पैसा जाता है, एक समय पे कभी उनको राशन भी मिलता था। नरेगा चेंज इट टू इन कैश और इन फाइनेंशियल टर्म्स। हैविंग सेड दैट, जब तक मैं ज़िले में पहुंचा 2014 में, तब तक
नरेगा बहुत स्टेबलाइज हो चुका था और मेरे जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम डूंगरपुर में किया हुआ था. इट हैड अ वेरी बिग ब्रांड नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल बट ऑल्सो एट द नेशनल लेवल कि डूंगरपुर में अच्छा काम होता है. आप इस आंकड़े से इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में डूंगरपुर में तकरीबन 1.5-2-2.5 लाख लोग नरेगा में एक दिन में काम करते थे. ये आंकड़ा कई कई स्टेट्स के पूरे आंकड़े के बराबर है. दैट इज द लेवल ऑफ पीपल who were trying to get work into that. तो जब तक मैं पहुंचा मेरा ये प्रयास था कि let me have a relook at the scheme, let me consolidate it further. जो आपने challenges बताए वो बहुत challenges होते हैं, लीकेज के बहुत challenges हैं, forgery के बहुत challenges हैं, नरेगा जॉब कार्ड उस समय पे हम लोग किस तरीके से जारी करते थे, फॉर्म 6 कैसे भरा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हम देखी. तो जब तक हमने ये सारी चीज़ों को स्टेबलाइज किया तब तक हमारा ये मानना था कि नरेगा में कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भारत सरकार चाह रही है जिसके तहत नरेगा शुड नॉट बी ओनली अ मींस ऑफ डोलिंग आउट इजी मनी एंड ड्यूरेबल एसेट्स पे उस पे समय पे बहुत फोकस था. जो आपने वाटर कंजर्वेशन के वर्क्स कहे उन पे बहुत फोकस था. तो हमने इमीडिएटली उन चीज़ों को पिकअप किया और तकरीबन 60% से ज़्यादा वर्क्स हमने उसमें लिए. ना केवल उन वर्क्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया लेकिन अगेन उन वर्क्स का जो इम्पैक्ट डूंगरपुर में बारिश बहुत होती है लेकिन उसके बाद भी सूखे पी रहते हैं, उसके बाद भी सॉइल इरोजन के इश्यूज थे. उन सभी चीज़ों को साथ लेते हुए हमने वाटर कंजर्वेशन और इन सब पे काम किया. और जैसा कि आपको विदित है तो उसके लिए डूंगरपुर ज़िले को नेशनल रिकग्निशन भी मिला. एंड अगेन इट वाज अ काइंड ऑफ अ मॉडल विच आई वुड से हैज़ स्टेड विद मी कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन के साथ चलते हुए उनको साथ लेते हुए काम करते हैं you get better results. जी. तो इसका आई थिंक बहुत सारे और सेकेंडरी इम्पैक्ट भी हुआ होगा क्योंकि वाटर कंजर्वेशन आपने किया तो उससे एक तो ये है कि नरेगा के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, लोगों को वेजेस मिली, बट व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉन्ड्स बीइंग क्रिएटेड, राइट? व्हाट वर दोस आउटकम्स आउट ऑफ दैट? So I think again how organically things are related. जब हम कॉन्वर्सेशन ही कर रहे हैं तो मुझे भी एहसास हो रहा है आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. आई थिंक उस समय पे राजस्थान सरकार बहुत कॉन्शियसली वाटर कंजर्वेशन पे इन जनरल एक प्लान कर रही थी. और मुझे आज भी याद है कि महाराष्ट्र के अंदर एक जल संचय अभियान चलता था. उस समय के माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कुछ सेलेक्ट ऑफिसर्स को उस कैंपेन को स्टडी करने के लिए कहा गया. उसमें हम लोग भी शामिल थे और हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, because Rajasthan is a water deficient state, we struggle and कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कैसे उसको संचय किया जा सकता है, इसका प्रयास चल रहा था. उन 5 साल में जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में काम हुआ, मेरा मानना है कि डूंगरपुर के उन एक्सपीरियंसेस को लेते हुए ओवरऑल स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स काम कर रही हैं, बहुत कुछ हमने सीखा. And again, it became one of the foundational stones to understand कि कैसे हमें MJSA अभियान को प्लान करना है. How geotagging of structures has to be done, how the watershed department has to be involved, how the NGOs are to be required to kind of pitch in. Because ये सारी जो जानकारी है collective wisdom में समाती है. तो मुझे आज भी याद है कि हमारे डूंगरपुर में उस समय पे पेडो नाम की एक संस्था बहुत लंबे समय से काम करती थी. मिस्टर देवीलाल व्यास उसके फाउंडर थे. उन्होंने 30-40 साल अपने जीवन के उस एरिया को दिए और हमने जिस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया, तकरीबन 150 से 200 गांव तक उनकी रीच थी. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में हमने काम में लिए. तो चाहे वो डूंगरपुर था या चित्तौड़ जिसमें मैं बाद में गया, उन सभी चीज़ों में हमें बहुत सीखने को मिला. जी, आपने बताया कि जैसे पेडो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आपने काम किया, आपने IIT बॉम्बे के साथ भी काम किया है. तो वन कॉमन थीम जो मुझे दिख रही है कि यू हैव बीन वेरी एक्टिवली एंगेजिंग विद अ लॉट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अ लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो उनकी कितनी आप यूटिलिटी देखते हैं इन द प्रेजेंट डे एंड एज इन गुड गवर्नेंस एसेंशियली? सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारी सर्विस का. मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं डूंगरपुर कलेक्टर लगा तो बहुत सारे साथियों ने सहानुभूति व्यक्त की मेरे साथ कि आप बहुत दूर जा रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इम्पैक्ट होगी. तो थोड़ा सा मैं भी चिंतित हुआ और मैंने सोचा कि
किस तरीके से पैन आउट होगा, किस तरीके से मैं अपनी सेवाएं दे पाऊंगा। तो जब मैं जा ही रहा था तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि डूंगरपुर में क्या क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे मैं डिस्कस कर पाऊंगा। तो आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर सम एनजीओज, लेकिन एनजीओज सारे फ्लाई बाय द नाइट थे कि उदयपुर पास जिला पड़ता था, दे विल टेक अ फ्लाइट टू उदयपुर, spend half an hour in Dungarpur, get those photographs clicked, and then be back in the palaces and the hotels in Udaipur and go back. लेकिन मेरी नज़र पेडो के ऊपर पड़ी और देवीलाल व्यास जी शायद उदयपुर के रहने वाले थे, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के साथ जो मैंने पढ़ा वो 30-40 साल से वहाँ रह रहे थे। मेरे को काफ़ी जिज्ञासा हुई कि एक कलेक्टर होने के नाते, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जहाँ इतनी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद वहाँ पे लोग बहुत छोटा ड्यूरेशन में काम करके निकलना चाहते हैं, और यहाँ कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉक स्टॉक बैरल इतने साल पहले आए होंगे और अभी भी काम कर रहे होंगे। तो जैसे आईआईटी बॉम्बे का मैंने आपको जिक्र किया, वैसे ही पीडो के जो देवीलाल जी थे, मैंने उनको खुद फ़ोन किया और आई थिंक वाड़ा उनके गांव का नाम था उस समय पे। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ और आना चाहता हूँ। तो उनको 100% लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं खुद आऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं ही आना चाहता हूँ। तो मैं गया, मैंने 2 दिन उनके पूरे कैंपस पे स्पेंड किए एंड आई कुड सी द वॉल्यूम ऑफ वर्क दैट ही हैड डन। और मुझे इसको मानने में कोई संकोच नहीं है कि जितना चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल ऐसी संस्थाएं लाती हैं, वो शायद हम अपने लिमिटेड कार्यकाल में कभी भी नहीं ला पाएंगे। और एट मैक्स जो मैं अपने रोल को देखता हूँ, वो एक फैसिलिटेटर, एक कैटलिस्ट के रोल को देखता हूँ। वी शुड नॉट ब्रिंग हर्डल्स इनटू पीपल हु आर ऑलरेडी ट्राइंग टू डू मोर, but we should try to facilitate them. So you are very right in saying that it is my active, conscious effort to collaborate with people who are trying to make change, be it on this side of the table or the other side of the table. I think we are all one team, and that has always kept me going in reaching out and making that attempt. I think आजकल बहुत सारी सरकारें हैं जो अब बहुत रिसेप्टिव हैं to getting consultants, to getting NGOs, to getting civil society organizations involved in governance. I think it's a very right, a step towards involving, more and more people in the process of transformative change in the country. Yeah, that's how it should. Yeah. So आप अगले जो डिस्ट्रिक्ट गए वो चित्तौड़गढ़ गए, वहाँ पे एक उड़ान स्कीम जो है उसका काफी चर्चा में रहा था, उस उड़ान स्कीम। तो जरा बताएं उड़ान स्कीम का क्या उद्देश्य था, कैसे स्टार्ट हुआ एंड व्हाट वर द की लीवर्स ऑफ चेंज देयर? सो देखिए, डूंगरपुर में तकरीबन 2 साल कलेक्टर रहा, और चाहे वो नरेगा की हमारी अटेम्प्ट्स हो, चाहे वो सैनिटेशन में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया था, उसके हमारे एक्सपीरियंसेस हों, या फिर सोलर कैंपेन हो, इट गेव मी लॉट ऑफ ग्राउंडिंग, इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कलेक्टर का प्रोफाइल जो है वो एक चेंज एजेंट का प्रोफाइल है, ना कि स्टेटस कोइस्ट प्रोफाइल है। एंड फ्रॉम द वर्ड गो आई वाज लुकिंग फॉर कि चित्तौड़ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं जो पब्लिक चाहती है कि हम सॉल्व करें। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम डूइंग द बेसिक एंड द फ्लैगशिप स्कीम्स, आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर व्हाट कैन बी डन। और जो हमारी सोच हमेशा से रही है कि लेट अस हियर फ्रॉम पब्लिक व्हाट डू दे वांट। आई थिंक उस समय तक चित्तौड़ के अंदर जो मेरी नज़र गई, HDI इंडेसेस में हम लोग ठीक थे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हेल्थ फैक्टर्स हो। बट विद इन एजुकेशन जो लिटरेसी रेट्स का जो एक स्क्यूड प्रोपोर्शन दिखा मेल लिटरेसी में और फीमेल लिटरेसी में, दैट कॉट माय आई। एंड धीरे धीरे जब हमने देखा कि चाहे वो चाइल्ड मैरिजेस हों, चाहे वो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो, इन सभी चीज़ों में मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एजुकेशन के लेवल के ऊपर हम एड्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी 2017 वी लॉन्च दिस कैंपेन, और लंबे समय तक हमने तकरीबन 2.5-3 साल इस कैंपेन पे काम किया। और प्रयास केवल यही था कि किस तरीके से हमारी जो बच्चियां हैं, जो स्कूल गोइंग एज की बच्चियां हैं, उनको हम वापस स्कूलों में लेके आ पाएँ। और उसके पीछे भी एक बहुत पर्सनल रीज़न भी था, बिकॉज मैं मानता हूँ कि एजुकेशन बहुत बड़ा एक एम्पावरिंग टूल है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को देखा है, और ख़ास करके अगर एक महिला परिवार की अगर एजुकेट होती है तो ना केवल खुद को
बल्कि पूरे परिवार को साथ लेके चलती है। इस सोच के साथ हमारा जो स्पेशल फोकस था वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे गया और 3 साल हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत एनालिटिकली इश्यूज को स्टडी किया। हमें पता था टीचर एब्सेंटिज्म है, हमें पता था स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल कर रहा है, हमें पता है टीचर की कैपेसिटी कम है, बट वी वर इन लॉन्ग फॉर अ लॉन्गर हॉल। हमें पता था कि हम लोग अगर 2-3 साल लगातार काम करेंगे तो अच्छे नतीजे हमें मिलेंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता सकें कि what were the major challenges because of which the school dropout rate among girl child was so high? Because कुछ systemic problems होंगी कि जैसे आपने बताया कि teacher absenteeism है, right? और कुछ चीज़ें होंगी जो social issues हैं because of which people are not able to go to school. तो अगर थोड़ा बता सकें what were the various reasons? तो मैं जैसे आपसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले चर्चा कर रहा था कि आई कम फ्रॉम अ रिलेटिवली हम्बल बैकग्राउंड। इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं और आई एम ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ दोज स्टोरीज जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक अटेम्प्ट करें टू मेक गुड ऑफ देयर लाइफ। आई टेक अ स्टेप बैक, go to the family background to make a context that what were the things which were being in my mind. तो मेरे paternal जो grandparents हैं, they had migrated from Pakistan. They were landless laborers. They tilled other people's field. And likewise जो maternal grandparents थे, वो लोग भी without land थे, लोगों के खेतों पे काम भी करते थे. And my Nana ji at one point time to support his family had to pull a rickshaw also. Despite that, I was intrigued by this fact even from my childhood कि उन्होंने भी अपने समय पे my mother is the lone daughter of her family. उन्होंने उस समय पे भी अपनी बेटी को शिक्षा से वंचित नहीं किया. उस समय पे भी उन्होंने लगातार उनको स्कूल भेजा, इवन बाहर भेजा पंजाब के पढ़ने के लिए. And right now I was in the 21st century and all these kind of schemes were there. चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, स्कूल की फी माफ हो, साइकिल वाउचर्स हो. आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं. इधर माय ग्रैंडफादर वाज एन एक्सेप्शन और समथिंग इज रॉन्ग इन माय डिस्ट्रिक्ट. उस कंटेक्स्ट में जब मैंने महसूस किया कि हम लोग जिस तरीके से सर्विस डिलीवरी करते हैं, जिस तरीके से इस चीज को बात को आगे रखते हैं, कई बार हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये चीज पब्लिक में है, लेकिन उसको बार बार नीचे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल ऑफ नैरेटिव्स. आज एजुकेशन जैसे विषय के ऊपर भी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि समाज जो है वो कोई दूसरी चीज के ऊपर फोकस करेगा बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ बैटल ऑफ प्रायोरिटीज. इन दिस बैकग्राउंड हमने ये सोचा कि लेट अस ब्रिंग एजुकेशन बैक टू द फोरफ्रंट, लेट अस एटलीस्ट डिस्कस. और जो आपने चैलेंज कहे वो ह्यूमंगस थे कि एज अ कलेक्टर अगर हम पब्लिक को कहें कि भाई बच्चियों को स्कूल में भेजिए तो उन्होंने तो पहले ही भेज दिया होता. ऐसी कोई वाणी कहीं से नहीं आ रही है. कलेक्टर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. अगर वो कहे और सब काम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता. सो वी थॉट अबाउट इट. हमें ये पता था कि हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी शेप में नहीं है. कहीं छतें भी टपक रही होंगी, कहीं जानवर भी अंदर होंगे, टॉयलेट्स की स्थिति खराब होगी. उस बैकग्राउंड में जब हम लोगों को कहेंगे स्कूल में भेजें तो हो सकता है कि लोग कहें कि पहले अपना हाउस इन ऑर्डर कीजिए फिर हमें आप बताइए. एग्जैक्टली. इन दैट बैकड्रॉप आई वाज टेकिंग मीटिंग्स एंड थिंग्स वर नॉट वर्किंग. एंड इन दैट बैकड्रॉप आई वेंट बैक टू द मॉडल व्हिच वाज अगेन अंडरस्टूड इन डूंगरपुर दैट रादर देन कागज मीटिंग, गो एंड टॉक टू द पीपल. In that backdrop, with lot of courage, with lot of faith in the people, we did our first Shiksha Chopals. Okay. So in the daytime, we would work, and then night, we would go to the village, sit on the floor with the people, and one girl child who had done something, through education. She could be a forest guard, she could be, a teacher, she could be a nurse in some place. She would be somebody who would be the chief guest that day, and she would narrate how education has changed her and her family in toto. There were times when there were family of generations who have been doing manual scavenging. उनकी बेटियां जब manual scavenging छोड़ के जब उन्होंने स्टेज पे खड़े होके जहाँ कलेक्टर नीचे बैठा and she's sitting at the top, when she narrated how she has come there, I think it was magic. Even my thoughts got reinforced. तो लोग कई बार देखी हुई चीज को ज्यादा बिलीव करते हैं as compared to somebody coming
and kind of pontificating to them. उस कंटेक्स्ट से लेके चाहे वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्कीम्स का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो हमारे टीचर्स की ओरिएंटेशन हो, इन सभी पहलुओं के ऊपर हमने 3-4 साल काम किया. एंड आप बहुत हैरान होंगे वेंकटेश कि कहाँ तो हम लोग ये सोचते थे कि लोग हमें कहेंगे कि पहले स्कूल बनाइए, हाँ. पहले ये कीजिए. लोगों ने अपनी बकरियां बेची, लोगों ने अपना लैंड बेचा, लोगों ने हमें 10 करोड़ रुपया इन कैश एंड काइंड दिया कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों की ये सपोर्ट लीजिए और हमारे स्कूलों को, हमारे टीचर्स को आगे लेके जाइए. और इसी का फल था कि हमने 13,000 से ज़्यादा बच्चियां और तकरीबन 10,000 बॉयज़ हमने 6 से 14 वर्ष की आयु में आइडेंटिफाई किए थे, 3 लाख घरों को स्कैन करके, सर्वे करके. और मुझे बहुत खुशी है आज भी कि उन 23,000 बच्चों में से हम लोग 21,000 से ज़्यादा बच्चों को उन 2-3 सालों में स्कूल में वापस लाने में और स्टेबल करने में सक्सेसफुल हुए थे. सो जहाँ चाह है वहाँ राह है. आई थिंक रोल मॉडलिंग का काफ़ी इंटरेस्टिंग उपयोग किया आपने कि रादर देन कि कोई बाहर से आकर के लेक्चर दे रहा है कि गर्ल चिल्ड्रन को आप भेजिए स्कूलों में, जो लोग स्कूल गए, जो बच्चियां स्कूल गई और उन्हीं के स्टोरीज से लोगों को इंस्पायर करके मोटिवेट किया आपने. एंड आई थिंक एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इटसेल्फ इन कलेक्टिंग दिस मनी, पूल ऑफ मनी एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर द प्रॉपर कॉज हियर, राइट. सो आई थिंक इसमें एक एस्पेक्ट आता है जन आंदोलन, एंड जन आंदोलन जो है उससे रिलेटेड आपका स्वच्छ भारत अभियान इज वन ऑफ द की फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 2014 में लॉन्च हुई. एंड उसमें भी आपने चित्तौड़गढ़ में भी, आई थिंक डूंगरपुर में, दोनों जगह आपने काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया, राइट. सो एंड नेशनल अवार्ड भी मिला आपके डिस्ट्रिक्ट को एंड आपको फॉर ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. तो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखे थे जब आप डिस्ट्रिक्ट में गए, एंड व्हाट वर द की लीवर्स ऑफ चेंज ऑन द ग्राउंड जिससे आपने ये बदलाव, क्योंकि बिहेवियरल चेंज का काफ़ी एस्पेक्ट है इसमें, राइट. तो वेंकटेश, जैसे मैंने आपको एक छोटे से ज़िले का एग्जाम्पल दिया कि एक जगह पे आप कलेक्टर बन के जाते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं. लाइकवाइज आप इमेजिन कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री के सामने कितनी प्रायोरिटीज होंगी, और उन सभी प्रायोरिटीज को देखते हुए अगर देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को एक प्रायोरिटी बनाते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू हैं सोचने के, समझने के. तो मुझे आज भी याद है कि मैं जून 2014 में कलेक्टर लगा था. 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने अपना रेड फोर्ट से भाषण दिया और उस भाषण में बहुत फोकस्ड वे में उन्होंने सैनिटेशन की बात की थी. एंड उससे पहले निर्मल भारत अभियान जो था वो चलता था, जहाँ पे सैनिटेशन के लिए कुछ काम होता था. एंड बाय दैट टाइम वी हैड स्टार्टेड प्लानिंग कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं. जैसे नरेगा था वैसे हमारा निर्मल भारत अभियान पे फोकस आया. तो हमने रूपारो डूंगरपुर इज मेरा डूंगरपुर, खूबसूरत डूंगरपुर को प्लान किया था कि हम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती से लॉन्च करेंगे. एंड एज लक वुड हैव इट, स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में एक साथ अनाउंस हो गया और 2 अक्टूबर 2014 को ही लॉन्च हुआ. सो आप ये कह सकते हैं कि वेरी अर्ली ऑन वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कितना पॉलिटिकल विल है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव विल है. एंड आई वुड टेल यू, आई हैव वर्कड एट लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, आई हैव ट्रैवल्ड आल्सो अ लॉट, चाहे वो न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर्स हों, चाहे वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स हों. द वे दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, आई थिंक जो हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एक छोटे से डूंगरपुर में सोलर अभियान से करना चाह रहे थे, something similar kind of ripple effects sanitation had. And we have to understand the psychology why even Mahatma Gandhi was so, focused on sanitation. Because this aspect deals with a lot of things. It deals with, eradication of caste system. It deals with, a kind of equality in social ecosystem. It also deals with a discipline. और आप किसी भी देश को पिकअप करके देखिए, चाहे आप सिंगापुर को देखें, चाहे वो यूएस को देखें, हर देश ने किसी ना किसी पड़ाव पे 1-2 ऐसे बड़े कैंपेन लिए हैं जहाँ पे पूरी पब्लिक को उन्होंने साथ लिया है. उन चीज़ों को देखते हुए सैनिटेशन वाज लेस ओनली अ मोड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, इट वाज ऑफ गिविंग दैट वन नेशनहुड स्पिरिट टू द होल ऑफ द कंट्री. एंड आई थिंक उसमें हमने बहुत कुछ सीखा. तो
तो चाहे वो ट्विन पिट टॉयलेट्स टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बाकी जगहों के ऊपर एक बहुत सिस्टमैटिक वे में मेजन्स की ट्रेनिंग करके मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज करना. सो व्हाइल आई वाज इन डूंगरपुर ओनली, तब तक ही हमने डूंगरपुर में काफ़ी चैलेंजिंग एरिया था, हिलॉक्स हैं और वहाँ की जो आमजन है उनको कभी आदत नहीं है किस तरीके से टॉयलेट्स को काम में लेना है. बट लगातार धीरे धीरे काम करते हुए हम लोग वन ऑफ द क्लीनेस्ट टाउन्स में हम लोग की डूंगरपुर आज भी जाना जाता है. डूंगरपुर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज द क्लीनेस्ट टाउन इन इट्स कैटेगरी. बिलो 50,000 टाउन्स जो है, जैसे इंदौर अपने आप में अपना नाम है, वैसे ही डूंगरपुर केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर 50,000 की पॉपुलेशन के नीचे के शहर में इट्स एट द टॉप कैटेगरी. उन एक्सपीरियंसेस को लेके जब मैं चित्तौड़गढ़ में पहुंचा तो तब तक वर्ल्ड बैंक, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद से वर्ल्ड बैंक वाज प्रोवाइडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड टू द कंट्री. तो हमारे साथ फिर वर्ल्ड बैंक की टीम ने काम किया. उन्होंने 2 ज़िले पूरे देश में सेलेक्ट किए. एक उत्तर प्रदेश का ज़िला था, एक राजस्थान का चित्तौड़ उन्होंने लिया और हमने बहुत तेज़ गति के साथ रैपिड रिजल्ट्स कैसे आए कोलैबोरेटिव लीडरशिप के साथ, उस पे हमने काम किया. तो जो काम 2 साल में होना था वो हमने 6 महीने में हासिल किया. चाहे वो बिहेवियरल चेंजेस की बात हो, चाहे वो पूरे के पूरे जन आंदोलन बनाने की बात हो. सो आई थिंक लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस और काफ़ी कुछ सैनिटेशन के काम में हमें साथ साथ में सीखने को मिला. What were the systems built in throughout the city to ensure that cleanliness बनी रहे, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो वेस्ट कलेक्शन हो, चाहे कीपिंग अ चेक ऑन पीपल की लोग चीज़ें बाहर फेंके नहीं, राइट? बिकॉज इंदौर एज अ सिटी के बारे में तो लोग बहुत सुनते हैं, उसके बहुत वीडियोज़ भी बने हुए हैं, बट अगर आप अपने राजस्थान के एक्सपीरियंस से बता सके तो क्या क्या सिस्टम्स यहाँ पर बिल्ड हुए जिससे इनेबल हो पाया? देखिए, कोई भी कैंपेन जो है वो पब्लिक सपोर्ट के बिना चल नहीं सकता. आपने कोविड टाइम्स पे देखा, मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, कोविड टाइम्स पे आप देखा कि जो जनता कर्फ्यू का आह्वान जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो सरकार ने किया, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड वाज एबल टू इम्प्लीमेंट अ कर्फ्यू बाय ओन चॉइस ऑफ द पीपल. आपने अमेरिका जैसी कंट्री को देखा, देवर डिबेट्स इवन ऑन वेयरिंग मास्क्स, राइट, कि मास्क भी पहनना है कि नहीं पहनना है. जी और इतने बड़े देश में आई थिंक मार्च 2020 एक दिन कहा जाता है कि आप सबको सपोर्ट करना, और एक साथ लोग जो है उस जनता कर्फ्यू का पालन करते हैं. अलवर जिले में था उस टाइम पे, अगेन वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, बट जनता कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट होते हमने इस देश में देखा. उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की जो नींव है वो पब्लिक का सपोर्ट है और पब्लिक के बिहेवियर में एक आंतरिक बदलाव है, नॉट अ चेंज विच इज फोर्स्ड. आज की तारीख में ट्रैफिक लाइट लोग पढ़े लिखे क्यों जंप कर रहे हैं? उनको लाल बत्ती दिख रही है फिर भी वो जंप कर रहे हैं. आज की तारीख में टैक्स इवेजन कंट्री में क्यों हो रहा है? आज की तारीख में लिटरिंग क्यों हो रही है? इन सभी चीज़ों का जवाब जो है वो हम लोग खुद हैं. एंड जैसे NGOs में और सरकार में अंतर नहीं है, वैसे ही सरकार और सिटीजन्स में अंतर नहीं है. सो आई थिंक जो चैलेंज था हमारे सामने वो ये था कि हमें इस चीज़ के बारे में एफिकेसी, इस चीज़ की एक बाय इन जो है वो पब्लिक से ऑटोमेटिकली नहीं आता है. पब्लिक के साथ बैठना पड़ता है, बताना पड़ता है. तो अगर हम एक माँ को ये बताएंगे कि अगर सैनिटेशन घर में रहेगा तो उसके नवजात बच्चे की बचने की प्रोबेबिलिटी इतने संख्या बढ़ जाती है. करेक्ट. आप जानते हैं कि डायरिया से और इन सब से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई रहता है. जी लाइकवाइज अगर बच्चियों को घर पे एक्सेस नहीं होगा टॉयलेट्स का, और आप जानते हैं कि फ्रॉम सनराइज टू डस्क महिलाओं को वेट करना पड़ता है टू रिलीव देमसेल्व्स, उनके किस किस तरीके की बीमारियों को उनको फेस करना पड़ता है. Males at that time could go out anywhere in the open. That's how the society is. उस फैक्ट को जब सामने रखा गया, इज्जत घर का नाम जब दिया गया टॉयलेट को, बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिससे धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया. हम लोग जाके जब बात करते थे कि आप एक ट्रैक्टर, एक टीवी, एक कार ले सकते हैं, लेकिन आप एक टॉयलेट बनाने के लिए आप कहते हैं कि सरकार 12,000 रुपया देगी तब हम टॉयलेट नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी काम हो जाए. These things they were talked and they were discussed. और उसके बाद धीरे 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 जैसे आपने देखा कि कारवां बनता गया, पॉलिटिकल विल थी, पूरे सिस्टम्स इन प्लेस थे,
और कहीं ना कहीं ऐसा था कि ऐसा लगा कि पूरा देश एक साथ जुड़ रहा है और उसके नतीजे जो है सब जगह मिले। आई थिंक एक एस्पेक्ट है ऑफ पॉलिटिकल विल जो आप बता रहे हैं एंड ब्यूरोक्रेटिक चैंपियनशिप कि जब तक दो चीज़ें अगर होंगी तो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हो सकते हैं। तो इन योर करियर वेयर ऑल हैव यू सीन दीज थिंग्स कमिंग इन प्लेस? आई थिंक कुछ एग्जांपल आपने दिए, बट अगर आप और एग्जांपल दे सके जहाँ पे दिस एज अ लीवर ऑफ चेंज की पॉलिटिकल विल भी हो, ब्यूरोक्रेटिक चैंपियनशिप भी हो एंड उसकी वजह से एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सका। आई थिंक कोविड मैनेजमेंट इज अ वेरी रीसेंट केस स्टडी जिसको लोग कनेक्ट कर पाएंगे। नो डाउट देयर हैज बीन वेरी वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, चाहे वो लॉस ऑफ लाइफ हो, चाहे वो लाइवलीहुड्स का इम्पैक्ट हो। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हमारे देश ने हैंडल किया है कोविड क्राइसिस को, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, लाइवलीहुड्स का और लाइफ का एक जो बैलेंस हमें रखना था, उन चीज़ों को देखा जाए, जिस लेवल की माइग्रेशंस हमें करानी पड़ी, पीपल हु वर माइग्रेंट लेबर्स एट से अ डिस्ट्रिक्ट लाइक अलवर, स्पेशल ट्रेन्स वर डिप्लॉयड फॉर देम। So I think lot of political will in kind of taking up on the challenge, and at the same time आप imagine कीजिए उन डॉक्टर्स को जिन लोगों ने लगातार अपने आप को उस असमंजस की स्थिति में भी अपने आप को झोंका। They didn't knew what kind of fate awaits them, लेकिन स्टिल वो लोग आईसीयू में 18-18, 20-20 घंटे काम करते थे। लाइकवाइज जितने भी कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों को पहले खुद को बचाना चाहिए और उसके बाद सोशल सर्विस में आना चाहिए। सो जब लीडर लीड करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक फिर साथ में जुड़ती है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन that government exists in the first place. Otherwise, everything could be outsourced, everything could be privatized. Government by name should evoke faith. Yeah. By name, it should evoke trust. And that is where the role of government becomes critical. So जो मेरे को एक interesting insight निकल के आई इससे, वो ये है कि government as a key lever of change is very important for these transformative changes, but all of that cannot be implemented without the Jan support, right? People, support from the people, as seen in Swachh Bharat Abhiyan, as seen in COVID times as well. All right. So एक और aspect आपके career का जो मैं यहाँ पे थोड़ा dig deep करना चाहूँगा would be the time of elections. And you have been awarded 2 different awards by state as well as at the national level on electoral best practices. So 2019-2020 में आपको ये 2 awards मिले। तो अगर आप बता सकें कि what were the key interventions on the ground during elections जो आपने किए? I think one among them which I distinctly remember is the M-Sweep mobile application utilization. उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके साथ साथ में और क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से बेस्ट इलेक्शंस आप करवा पाए? तो जैसे हमने बात की कि आईएएस बनने के बाद कलेक्टर प्रोफाइल बहुत सिग्निफिकेंट होता है, राइट? वैसे ही एज अ कलेक्टर एक चुनाव कराना लाइफ में बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब आप इतनी सिग्निफिकेंट और इतनी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और भारत देश का जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में सेलिब्रेटेड है, द वे वी कंडक्ट आवर इलेक्शंस। तो 2018 में जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे तो मैं चित्तौड़गढ़ कलेक्टर था, एंड बाय द टाइम इलेक्शंस वर कमिंग आई थॉट मे बी दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट एज अ कलेक्टर आई विल बी कंडक्टिंग दीज इलेक्शंस। सो ऑलवेज देयर आर 2-3 प्रिंसिपल्स ऑन विच I plan to work. One is जो हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है जी, और अगर उसके बाद भी कोई ऊर्जा बचती है, एनर्जी बचती है, तो वी शुड टेक सम इनिशिएटिव्स इन दैट रियल्म। तो चुनाव को फ्री, फेयर, पीसफुल कराना ही अपने आप में बहुत मुश्किल और टफ मैंडेट होता है। चित्तौड़ में इट वाज द फर्स्ट इलेक्शंस दैट आई वाज गेटिंग कंडक्टेड। तो उस समय पे मुझे आज भी याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार कुछ इलेक्शंस को एक थीम के ऊपर चलाता है। कभी वो यूथ पे फोकस्ड होता है, कभी वो वुमेन पे होता है। दैट ईयर इट वाज फोकस्ड फॉर दिव्यांग्स। एक्सेसिबल इलेक्शन थीम थी, एंड आई थिंक बिफोर दैट वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। एंड उस समय तक जो दिव्यांगजन जो रजिस्टर्ड होते थे, टोटल इलेक्टोरेट का तकरीबन 0.65% तक उनका रजिस्ट्रेशन होता था। सो व्हेन आई हर्ड एंड अंडरस्टूड that from this ECI is trying to send a message, right, कि ना केवल वो लोग जो कंफर्टेबल हैं, जो खुद ब खुद प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं, उनका क्या जिनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। उस चीज़ को देखते हुए हमने सबसे पहले कोर चीज़ पे फोकस की, हमने रजिस्ट्रेशंस बढ़ाए।
तो आई थिंक चित्तौड़ वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमने कहा कि हमें हर दिव्यांगजन के घर पे दस्तक देनी है, उनको रजिस्टर करना है. सो अगर स्टेट का एवरेज 0.7% था, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज 1.8% था. ओके. रजिस्ट्रेशंस जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे. उस रजिस्ट्रेशन को वहाँ से लेके और फिर जब पोलिंग का समय आया तो जिस तरीके से पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ था, तो आई थिंक अबाउट 95% ऑफ वोटिंग फ्रॉम दिव्यांगजन्स वो हमारे चित्तौड़ ज़िले में हुई. एंड उसी का कारण है कि हमें इलेक्शन कमीशन ने भी और स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने भी रिकग्नाइज किया. जी. एंड दैट वाज 2018 इलेक्शन. एंड हमारे राजस्थान में और लोकसभा में केवल 6 महीने का अंतर होता है. 2018 में दिसंबर में चुनाव हुए और मैं फिर ट्रांसफ़र होकर अलवर गया. अलवर में मई में 2019 में लोकसभा के चुनाव आने वाले थे और यही इलेक्शन की थीम को हम लोगों ने देखा था. वी अंडरस्टूड हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय दैट टाइम माय फोकस वाज मोर ऑन टेक्नोलॉजी, माय फोकस वाज मोर ऑन यूथ. बाय दैट टाइम आई न्यू कि हम लोग एक पीस को चैलेंज को सॉल्व कर चुके हैं. तो वहाँ पे जो एम स्वीप है उसके ऊपर हमने काम किया. एम स्वीप इज मोबाइल स्वीप, राइट. तो स्वीप is a way wherein election body reaches out to citizenry and invites them and talks to them कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस में आए. और आज की तारीख में बहुत सारे चेंजेस ईवीएम के, वीवीपैट के उस समय पे हो रहे थे. कई लोगों के मन में बड़े सवाल भी थे. तो हमने टेक्नोलॉजी का लाभ लिया. रादर देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी फिजिकल गाड़ियाँ और ये सब तो डिस्प्ले पे और वहाँ जाती ही थी. गांव-गांव जाके हम पैट का हमें मैंडेट था कि आप समझाइए. तब हमने ये महसूस किया कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, लोगों के हाथ में मोबाइल है. सो व्हाई शुड वी सेंड वीवीपैट्स एंड ऑल दीज ऑन ऑटोज एंड बैलगाड़ीज. लेट्स मेक एन ऐप थ्रू विच वी गिव अ कंप्लीट वॉक थ्रू टू द सिटीजन. वोटर को पता चले कि भाई वीवीपैट क्या है, ईवीएम क्या है. और उसके लाखों डाउनलोड्स हुए और कई लोगों ने उस चीज़ को, प्रोसेस को देखा, समझा. एंड इट वाज अ वेरी यूनिक वे इन काइंड ऑफ एंगेजिंग पीपल, एजुकेटिंग पीपल कि किस तरीके से हमारा वोटर प्रोसेस आगे चलता है. सो आई थिंक दैट यूनिक इनिशिएटिव वाज ऑनर्ड बाय द ईसीआई दैट टाइम. जी जी. वो अगर दिव्यांगजन देखें जब आपके इलेक्शंस के लिए जाती है, स्पेशली अगर हम यूथ कैटेगरी की भी बात करें तो बहुत कम लोग आजकल वोट देते हैं. आपके एक्सपीरियंस से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग वोट नहीं दे रहे हैं? तो भारत में 3 स्तरीय चुनाव जनरली फोकस में रहते हैं. एक होता है जिला परिषद या अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, एक होता है असेंबली के चुनाव और एक होता है हमारे नेशनल लेवल लोकसभा के चुनाव. और 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी है हमारे देश में. अगर आप परसेंटेज वोटर टर्नआउट देखेंगे तो 3rd टियर पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होता सरपंच लेवल पे, दूसरे लेवल पे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तीसरे लेवल पे लोकसभा. बिल्कुल. नाउ एज अ एनालिसिस अगर हम लोग इस चीज को देखें, सरपंच में वोटिंग ज्यादा क्यों हो रही है, ऊपर कम और फिर ऊपर कम क्यों हो रही है? बिकॉज जैसे जैसे वोटर का एंगेजमेंट कम होता जाएगा, वोटर को लगता है कि उसके स्टेक्स सरपंच के चुनाव में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ नेशनल इलेक्शन और सम अदर इलेक्शन, विच माइट नॉट बी द केस. तो जैसे हमने हर चीज में देखा, जब तक इलेक्शंस बहुत क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक इलेक्शंस के अंदर उन सभी चीज़ों की बातचीत नहीं होगी, जब तक वो चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, वोटर को हम लोग केवल और केवल बातों से ड्रॉ इन नहीं कर सकते. लॉट ऑफ स्वीप कैंपेन्स एंड अदर थिंग्स माइट गो इनटू, बट आप देखते हैं कि कुछ इलेक्शंस चाहे वो सेम लेवल के हों, एक नेशनल इलेक्शंस हो सकते हैं कि जो दूसरे नेशनल इलेक्शन से बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट दिखे. कारण उसका ये नहीं है कि उस साल स्वीप बेहतर हुआ या लोगों को कोई अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखाई गई. कारण ये है कि उस समय पे देश में या उस स्टेट में ऐसा लगा कि दिस इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू वोट. सो आई थिंक वोटर टर्नआउट जो है इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज प्लेइंग आउट. हमारे देश का जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी बाकी कंट्रीज के वोटर टर्नआउट से काफ़ी बेहतर है. There are some countries which have made voting mandatory कि अगर आप सिटीजन हैं तो आपको वोटिंग ज़रूर करनी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, बाकी देश हैं. और जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ है जहाँ पे वोटिंग मैंडेटरी नहीं है और बहुत अलग सिस्टम है, वहाँ पे वोटिंग रेट्स हमसे भी कई जगहों पे कम है. राइट. आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हाल में इलेक्शंस खत्म हुए एंड जब एनालिसिस हो रहा था इलेक्शन का तो हर टीवी चैनल पे यही दिख रहा था कि यहाँ पे वोटर टर्नआउट ज़्यादा है, सो प्रोबेबली कुछ पीपल आर
लुकिंग टुवर्ड्स सम चेंज और एंटी इंकम्बेंसी है, तो इस टाइप के आई थिंक एनालिसिस तभी निकालते हैं लोग, क्योंकि इस टाइप का ट्रेंड देखा जा रहा है। जी जी जी। सो इंद्रजीत जी, आपने कोविड के बारे में जिक्र किया, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे जब कोविड हुआ था, एंड कहाँ पे आपने उसका फिर इंटरवेंशंस दिए सो दैट चीज़ें थोड़ा सेटल हो सकें, लॉकडाउन हम ढंग से मेंटेन कर पाएँ, एंड जो इम्पैक्ट है कोविड का वो बहुत मिनिमाइज हो सके? देखिए, मैं अलवर में था उस जी, टाइम पे। जी। आई थिंक बाय December 19 Yeah. it was being felt that वुहान से एंड सब जगहों से इंटरनेशनली पता चल रहा था, एंड बाय March 20 it had shown its face in the country also, एंड फिर उसके बाद से लॉकडाउन होना, उसके बाद से रिस्ट्रिक्शंस इन मूवमेंट होना शुरू था। तो मैं उस समय पे अलवर में ही था। अलवर coincidentally in Rajasthan is a very unique district. It's part of NCR. It is a huge district. Lot of challenges because हम लोग borders share करते हैं, जो porous हैं, जो हमारी demography है वहाँ बहुत अलग है, law and order wise हम बहुत sensitive हैं वहाँ पे, और बहुत migrant labor काम करती है. It's an industrial hub. About 30-40% of manufacturing of Rajasthan happens in Alwar. We have a Japanese zone there. We have big companies there. और तकरीबन 1.5-2 लाख migrant labor वहाँ पे रहते हैं. इन सब परिस्थितियों के अंदर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट्स जो दिल्ली को फीड करता है, वो भी वहाँ से चिकन नेक की तरह जाता है, चेट निकलता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना was a tough task. But again there, I think for the first time I utilized technology. I would go on Facebook, I would go on YouTube live एंड मेक श्योर कि फेसबुक के ऊपर लोगों को सुना भी जाए और उनको एड्रेस भी किया जाए, उनको बताया भी जाए कि हर दिन गाइडलाइंस चेंज होती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, माइग्रेंट लेबर्स के लिए ट्रेन लगेगी क्या नहीं लगेगी। आज हम कह रहे हैं कि आपको घरों में रहना है, और अगले दिन अगर ट्रेन लगती है, और र्यूमर मॉन्गरिंग उस टाइम पे ऐसी थी कि एकदम से लोग निकल के आ जाते थे। आप जानते होंगे दिल्ली के अंदर आनंद विहार बस अड्डा, ISBT, और हर किसी के लिए स्वाभाविक था, लोग अपने घर की तरफ, अपनी सेफ्टी की तरफ जाना चाहते थे। सो अलवर में इट वाज लेस अबाउट कोविड मैनेजमेंट एंड द मेडिकल रिलीफ एज सच। आई थिंक पूरे देश में उस समय पे वी वर जस्ट काइंड ऑफ गेयरिंग अप, वी वर गेटिंग प्रिपेयर्ड कि कैसे लॉकडाउन्स लगेंगे, कैसे होगा। एंड लकीली COVID in the first wave was not that, I would say, harmful, जितना कि वो next wave जो April 21 में वेव आई, March April में आई अगले साल, उसमें बहुत ज़्यादा भयानक उसने रूप लिया। लेकिन तब तक आई थिंक देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो चुकी थी। राइट। तो जब अलवर में आप बता रहे माइग्रेंट क्राइसिस एक तरह से हुआ था, सबको अपने अपने घर जाना था, जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स वर्क कर रहे थे, तो हाउ डिड यू इंश्योर दैट सीमलेसली दे आर एबल टू गो बैक टू देयर होम्स? देखिए, उस समय पे बहुत फास्ट कम्युनिकेशन जो था वो दिल्ली में, जयपुर में और ज़िलों में होता था, एंड दैट इज़ वेयर अगेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। आई थिंक हमारे चीफ मिनिस्टर उस समय के जो थे, उन्होंने तकरीबन हज़ारों वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ली होंगी। इन अ डे वी यूज्ड टू हैव 4 to 5 VCs ऑल्सो, बिकॉज ना केवल डिसीजन लेना है, उसको नीचे कम्युनिकेट भी करना है। लाइकवाइज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं कि अक्रॉस द पार्टी प्लेटफॉर्म्स हर चीफ मिनिस्टर से बात होती थी, कई जगहों पे कलेक्टर से बात होती थी। सो देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क व्हिच वाज अगेन लेड ऑन द फाउंडेशन जो हमने डिजिटल इंफ्रा अपने देश में है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हों, टेली कॉन्फ्रेंसेस हों। तो उस समय पे जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, उसको रियल टाइम के ऊपर हम लोग नीचे लेके जाते थे, चाहे वो मीडिया के साथ संवाद करना हो। लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ उस समय पे हमने देखी, दैट इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप फेसबुक, ट्विटर लाइव जाइए, आप देखेंगे कि लोग आपसे सवाल भी रियल टाइम में पूछेंगे, आप उनको बताएंगे भी। एंड आई थिंक वो संवाद जो था उस टाइम पे, उसने बहुत सारी जो आशंकाएं थी उसको एड्रेस कराया। और जैसा मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट, अगर कोई दूसरा नाम है वो है ट्रस्ट का, तो अगर एक कलेक्टर कह रहे हैं ज़िले के कि भाई इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मेरा मानना है कि क्रेडिबिलिटी उस संस्था की बहुत बड़ी है। लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग आपके साथ चलते हैं, उसका नतीजा देखने को मिलता है। जी जी। तो अलवर में जब आप थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद जोधपुर गए आप फॉर द नेक्स्ट स्टिंट, तो वाज दैट ड्यूरिंग द कोविड टाइम इटसेल्फ दैट ट्रांजिशन हैपेंड? सो बिल्कुल कोविड का टाइम था। आई थिंक इट वाज जुलाई ऑफ 2020, राइट। एंड दैट टाइम कोविड वाज बीइंग टेकन वेरी सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। और उस समय पे जोधपुर पे मुझे आदेश मिले कि रातों रात ही मुझे जोधपुर पहुंचना है। एंड आई थिंक ऑन 4th of July
आई जॉइंड जोधपुर, और वहाँ बहुत सारे challenges थे. जोधपुर was in top 10 districts which was in red zone, और जो इन्फेक्शन रेट्स थे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे. हमारे पास एम्स जोधपुर था, हमारे पास IIT जोधपुर था, बहुत सारी संस्थाएं थी, लेकिन उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है ये एक चैलेंज था. और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक, इन सब लोगों को साथ लेके जब हम आगे चले, तो मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी जोन में थी, जिसको हमें एड्रेस करना था. चाहे वो लाइफ और लाइवलीहुड का एक बैलेंस जो स्ट्राइक करना था, चाहे वो आने वाली वेव्स की प्रिपरेशन करना हो, चाहे वो इवन पब्लिक के जो एक फियर कंपोनेंट था उसको एड्रेस करना हो. धीरे 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 हर चीज़ को हमने वहाँ स्टेबलाइज किया, और बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक ने हमारा साथ दिया. जी. सो जोधपुर में जब आप रहे तो एक आपका सेवा कैंपेन में भी आप इन्वॉल्व रहे. सो उसका जेनेसिस बताइए कि हाउ डिड यू कम टू द आइडिया ऑफ सेवा एंड व्हाट वाज दैट अबाउट? सो देखिए, जोधपुर राजस्थान की दूसरी मिलियन प्लस सिटी है. जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर राजस्थान का जोधपुर है. और जोधपुर एज अ शहर ना केवल पूरे ज़िले को, बल्कि मैं मानता हूँ पूरा मारवाड़, जो कि वेस्टर्न राजस्थान को हम बोलते हैं, उस पूरे मारवाड़ के अंदर एक अपनी अलग पहचान जगह रखता है. उसको देखते हुए एज कलेक्टर मैं महसूस करता था कि जो सारा अटेंशन, सारा फोकस है वो हम लोग जोधपुर पे रख रहे हैं, उसको एड्रेस भी कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉब्ली द सिग्निफिकेंट पीपल they were all residing in Jodhpur, but what about people who are outside? So जोधपुर में फलौदी, बाप, ऐसे ऐसे कस्बे थे जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हैं. वहाँ से 3-3, 4-4 घंटे आने जाने में लगते हैं. ना केवल सर्विस डिलीवरी, बल्कि कोविड मैनेजमेंट पे भी जोधपुर was the first district जिसने ये कहा कि हम लोग केवल और केवल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे तो रखेंगे. व्हाट अबाउट पीपल हु आर एट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर? तो वो सारी चीज़ों को देखते देखते हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि एक बैलेंसिंग इफेक्ट आना चाहिए आपकी गवर्नेंस का. तो अगर सिटी में बहुत ज़्यादा फोकस आपका आता है तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे कंपोनेंट को मिस कर रहे हैं. दैट इज़ वेयर बिकॉज ऑफ कोविड एंड डिस्टेंसेस वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड सेवा. सेवा अभियान जो था वो सर्विस डिलीवरी एक होलसम कंपोनेंट था विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो सेवा के 3 कंपोनेंट थे. पहला कंपोनेंट था संपर्क, कि हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में, जो भी नई चेंजेस कोविड में आ रही हैं उनके बारे में पब्लिक से सीधा संपर्क करें. तो ड्राइंग अपॉन अलवर एक्सपीरियंस और जोधपुर सिटी एक्सपीरियंस, वी स्टार्टेड पैनिंग आउट टू ऑल दीज प्लेसेस. अच्छा डिजिटल इंफ्रा स्टेट में लगा हुआ था, पंचायत तक हमारी बात करने की कैपेसिटी थी. तो हमने संपर्क करना शुरू किया. हर हफ्ते के 2-3 दिन सिलेक्टेड होते थे कि इस दिन एग्रीकल्चर की बात होगी, इस दिन सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, कौन कौन सी स्कीम्स पब्लिक को मिल सकती हैं. तो संपर्क होने का मतलब ये था कि अवेयरनेस इन पीपल हैज़ टू कम अप. वंस देयर इज अवेयरनेस, वी एक्सपेक्टेड कि वहाँ से सर्विस डिलीवरी की रिक्वेस्ट आएगी. सो वंस सर्विस डिलीवरी की बात आती है तो फिर हम लोग सेवा, जो कि सर्विस डिलीवरी को फास्ट करना, ट्रांसपेरेंट रखना, उस कंपोनेंट पे हमने काम किया. एंड थर्ड वाज दैट इन केस सर्विस डिलीवरी में कोई चैलेंजेस हैं तो हम लोग उसको समाधान, ग्रीवेंस रिड्रेसल के नाम पे फॉलो करते थे और चौपाल लगाते थे. चौपाल भी बड़ी यूनिक चौपाल होती थी, उसको हम ई चौपाल कहते थे. ये पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह बैठ जाता था और जिस पंचायत में जिस इकट्ठ से हमें बात करनी होती थी वो दूसरे छोर पे होते थे. So without wastage of time, resources, otherwise these things used to happen in the real time. तो मेरा मानना है कि उससे हमने एक बैलेंसिंग अप्रोच रखी और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले. जी. तो आपने जब कोविड मैनेजमेंट की बात करी तब भी बताया कि फेसबुक के थ्रू या अदर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को रीच आउट कर रहे थे. आपने बताया ई चौबल के थ्रू भी आप सेवा के थ्रू सेम चीज़ कर रहे थे. टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द कॉमन इनेबलर, right? So in the present day and age, how do you see technology, kind of helping out in governance to the last mile, as well as how do you see internet connectivity, smartphone penetration as a challenge towards that? देखिए, कुछ ऐसी इन्वेंशंस होती हैं जो पूरी सोसाइटी का जो भविष्य है उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखती हैं. सिंस आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बहुत कीन इंटरेस्ट है कि
क्यों एक इन्वेंशन इतना इम्पैक्ट लाती है और क्यों दूसरी इन्वेंशन जो हो सकता है उस समय के लिए बहुत बड़ी एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हो, वो इतना काम आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्हील का इन्वेंशन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों में भी अगर आप देखेंगे जो हम बात करते आ रहे हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी पब्लिक को सर्व कर रही है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एज कंपेयर टू दिस थिंग दैट इट माइट बी अ वेरी गुड साइंटिफिक थ्योरम समवेयर, but if it is not going to be adapted to public life, it is not going to make an impact. So make a case study of a WhatsApp. Why almost every person is on WhatsApp today? हमारे grandparents WhatsApp पे हैं, senior citizens WhatsApp पे हैं. For a moment हम ये नहीं सोच सकते कि वो एक email address बनाएंगे, email address का use करेंगे और दूसरे अपने साथी को एक photograph attachment की तरह भेजेंगे. So what WhatsApp and email has a difference is that you have made the technology very adaptable, very easy to use. So I think in similar domain, technology is growing at a breakneck speed. आज जो डिजिटल पेमेंट्स के अंदर आप भारत को देख रहे हैं, जिस लेवल के ऊपर हमारे भारत में डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, all these things they are planned very well. जो आप जैम ट्रिनिटी सुनते हैं देश के अंदर, जनधन के बैंक खाते, आधार, मोबाइल, all these things have been planned and executed to perfection. और आज जब विदेश के लोग इस चीज़ को सोचते हैं, अभी पिछली 25 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट they were here in front of हवा महल, और चाय की चुस्की लेते हुए जब उन्होंने चाय वाले को यूपीआई से पेमेंट दिया, that is symbolism, correct, of that scale wherein technology along with our culture is coming and bringing those kind of results which have never been seen before. So I think technology for India is going to be a very very critical driver for the future growth. और उसको देखते हुए जिस तरीके से भारत सरकार या राजस्थान सरकार काम कर रही है, we have announced an AI mission which is 10,000 crore plus. We are trying to work in the field of cyber security, blockchain, all the sectors. Likewise, राजस्थान भी अपने अपने तरीके के साथ काम कर रहा है, और मेरा पर्सनल मानना है कि technology is going to be one of the critical foundational stone for India in the coming years. Right. So अभी currently आप serve कर रहे हैं as the commissioner in the Department of IT and Communications in the Rajasthan government. So in that capacity, how the government is looking at the Gen AI and the AI technology coming in, and किस टाइप से पॉलिसी शेप अप हो रही है टुवर्ड्स इट? देखिए, राजस्थान को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो राजस्थान में लोगों को रेत के धोरे नज़र आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं सर के ऊपर पानी के मटके उठा के बहुत दूर दूर ट्रैवल कर रही हैं। सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट लोगों को सुनता है, लोग बीमारों में उसको ब्रैकेट करते हैं। बट जैसे हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो तो रिजल्ट मिलते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट in the country. It's not because I'm sitting here, that's the reason I'm saying. We are no less, even some notches better when it is compared even with the southern states. उसका कारण ये है कि अर्ली 90s के अंदर लीडरशिप ने ये महसूस किया कि टेक्नोलॉजी एक बड़ा इनेबलर होने वाला है, और बहुत एम्पावर किया गया आईटी को। तो चाहे आप किसी भी सेक्टर में देखें, बहुत फाउंडेशनल वर्क हुआ। हमारे यहाँ पे 2007-8 के दशक में ही, 2007-8 में ही हमारे यहाँ पे डीबीटी अटेम्प्ट हो गई थी, भामाशाह स्कीम उस स्कीम का नाम था उस समय पे। लाइकवाइज जो हमारे सर्विस डिलीवरी के लिए लोक मित्रा और ई मित्रा जो बनते हैं, एज ऑफ टुडे वी हैव 80,000 प्लस ब्रिक एंड मोटर सर्विस डिलीवरी कियोस्क वर्किंग इन द स्टेट। ये 2002 से हमारे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए थे। और चाहे वो फैमिली रजिस्ट्री हो, जिसको हम लोग जनाधार बोलते हैं, हर जगह के ऊपर राजस्थान ने डीओआईटी पे बहुत ट्रस्ट और बहुत एम्पावर किया। और आज जब आप जेन एआई की बात कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन अ मैंडेट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड स्मार्ट, जिसके तहत एआई को सिटीजन सर्विस डिलीवरी के लिए उस लेवल पे यूज किया जाएगा जो हो सकता है देश में ही नहीं, किसी भी जगह के ऊपर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया गया है। एआई को कैसे डिप्लॉय किया जा रहा है,
अगर आप देश को देखें तो देश में भाषिनी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे LLMs के और उनके ऊपर काम हो रहा है। आज जो भाषिनी का यूज केस है वो किसी यूएस में या किसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। कारण ये है कि वहाँ की होमोजेनिटी है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और विद इन द स्टेट देयर आर डायलेक्ट्स। सो बहुत सिस्टमैटिकली एआई के यूज केस को देखा गया वहाँ पे। मेरा मानना है कि बाकी देशों में हो सकता है कि एआई को एक कमर्शियल एस्पेक्ट की तरफ देखा जा रहा हो। हमारा देश जो देख रहा है वो उसको अपनी सर्विस डिलीवरी की तरह देख रहा है, कैसे हम लोगों की लाइफ को आसान कर सकते हैं। उसी तर्ज के ऊपर राजस्थान काम कर रहा है। आज मान लीजिए अगर किसी महिला की पेंशन 60 साल के बाद बढ़ के 70 साल में बढ़नी है तो हमारा डेटा हमारे पास है। हमें पता है कि उनकी पेंशन इतने रुपए से बढ़ के इतनी होनी है। शी शुड नॉट बी मेड टू स्टैंड इन द लाइन। जी। लाइकवाइज अगर किसी परिवार में कोई बच्चा 10वीं से 12वीं में आ गया है, उसकी स्कॉलरशिप बढ़नी है, ही शुड नॉट बी मेड टू स्टैंड इन द क्यू और गो टू प्लेसेस जहाँ पे उसको सर्टिफिकेट के लिए कोई रिश्वत देनी पड़े। लाइकवाइज अगर किसी का ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू होना है, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड। वी आर क्रिएटिंग अ 360 degree view on our citizen profile. We are going to set golden data sets for our people and make sure कि आने वाले टाइम में AI को उस लेवल पे हम लेवरेज करें. We're already very close in kind of onboarding टेक्नोलॉजी पार्टनर्स. हम 3-4 यूज केसेस सोशल जस्टिस में और बाकी जगह पे ऑलरेडी कर चुके हैं. और मेरा मानना है कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीनली लुकिंग एट व्हाट राजस्थान डज इन दिस स्पेस. सो वी आर वर्किंग. जी, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे यूज केसेस अक्रॉस द कंट्री आजकल एक्सप्लोर किए जा रहे हैं. जैसे कन्वर्सेशनल चैटबॉट फॉर फार्मर एडवाइजरी इन उड़ीसा, इन उत्तर प्रदेश. इनफैक्ट आई वाज अभी इससे पहले जो हम लोग का एक एपिसोड शूट हुआ था विद सुहास जी, हु इज इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश. वो बात कर रहे थे कि LLM का यूटिलाइजेशन इन स्पोर्ट्स is also what they're exploring. So I think this is something which is happening and quite exciting for technologists in the country. And but काफी heartening to see that Rajasthan is also taking leadership in different use cases for the same. So I think टेक्नोलॉजी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका एक समय होता है जी. और देश के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस समय पे वो टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस आता है. जैसे आपने बज़वर्ड्स ब्लॉकचेन भी सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी भी सुना होगा. सो देयर इज अ रीजन दैट AI has got much more attention as compared to other emerging technologies. उसका कारण ये होता है कि वो कुछ यूज केसेस अपने एविडेंस की तरह दिखाता है और फिर जितने भी पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर्स होते हैं उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में जिस तरीके से सोलर एनर्जी को टैप किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सूर्य आज ही उदय होना शुरू हुआ है. ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. बट अनटिल अनलेस यूज केसेस दिखने शुरू होते हैं. आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप देख लीजिए, बिजली कब की इजाद हो रखी है, बैटरीज हैं, बट व्हाई नाउ? बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन नैरेटिव्स. फॉसिल फ्यूल्स की एक अलग लॉबी है जी. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले जब तक उस नैरेटिव को चेंज नहीं करते, उस जगह के ऊपर यूज केस नहीं लाते, रिजल्ट नहीं आता. आई थिंक AI एज ऑफ टुडे नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ वी वुड हार्नेस दिस टेक्नोलॉजी is $1 million question. आप देख रहे हैं कि कैसे ChatGPT हो, OpenAI हो, how these giants they are fighting on getting a better hold on this technology, and I think that is where India is very critically placed, and we are very hopeful कि जिस तरीके का हमारा intellectual एक power house, एक talent है हमारे पास, कहीं ना कहीं इसका use case जो है वो देश के लिए उन्नति का आयाम बनेगा. So आपका जो Department of IT and Communication in 2022 was interested with ideating and executing the state startup policy, and 2024 में ही जनवरी में राजस्थान was considered to be the top performer in the National Startup Day जब Government of India ने उसको award दिया. तो what have been the various interventions that Rajasthan has taken up for the promotion of startup culture in the state? Right. So देखिए, स्टार्टअप भी लाइक सैनिटेशन और लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब तरीके के साथ स्टार्टअप भी एक ऐसा बज़वर्ड है जो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे. और जब भी कोई चीज़ इतना ज़्यादा फोकस में आती है, सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग उसमें गहनता में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ ये बात पहुँची है.
स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि आइडिया को कैपिटल फॉलो कर रहा है। आई अगेन रिपीट कि आइडिया इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि साहूकार या कैपिटलिस्ट के पास ही आप आइडिया लेके जाएंगे, कार वही बना सकता है, घर वही बना सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स वही ला सकता है। आज जब ग्लोबल कैपिटल फॉलो करते करते किसी आइडिया को हमारे भारत तक पहुंच जाती है, जब हम देखते हैं कि सिक्वा कैपिटल और बड़े बड़े वीसी फंड्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ हमारे यूनिकॉर्न्स जा रहे हैं, इट मीन्स कि आइडिया हैज बिकम इम्पॉर्टेंट. Again, like AI or other things that we discussed, this is a time wherein an intellectual country, a country bubbling with ideas, has an opportunity जहाँ पे हो सकता है हमारा ग्लोबल फाइनेंस को एक्सेस आज तक कम था, लेकिन आइडियाज़ की कमी नहीं. That is the reason Startup India, Stand Up India was conceived early on in 2014. एंड तब से लेके अब तक इस पे काम शुरू हो रहा है. राजस्थान की जो स्टार्टअप पॉलिसी थी वो 2015 में पहले आई थी, which came from Department of Industry of Rajasthan. By 2017-18, it was felt that since a lot of technology, layers are involved and startups mostly are, working in consolation with technology, तो हमारे को 2019-20 में ये ट्रांसफर हुई थी. 2022 की जो स्टार्टअप पॉलिसी है राजस्थान की, वो अगेन बहुत यूनिक है, ड्राइंग अपॉन द स्पिरिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ IT, वेरी एग्रेसिव इन नेचर. अभी तक हम लोग तकरीबन 4,500-5,000 स्टार्टअप्स को रजिस्टर कर चुके हैं. जिस तरीके के एक्सपोजर प्रोग्राम, जिस तरीके का फिजिकल और सॉफ्ट इंफ्रा हमने ले किया है, उसको देखते हुए जो DPIIT है, जो रैंकिंग्स देता है स्टेट्स को, उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और एक यूनिक चीज़ जो किसी जगह नहीं हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, वो है कि अब हम लोग ना केवल Tier 1, Tier 2 शहरों तक लिमिटेड हैं, हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस तक रिमोट जो है वहाँ हम जा रहे हैं. हमने लॉन्च पैड्स और नेस्ट वहाँ पे बनाए हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है वो बहुत यंग एज पे आनी चाहिए. अगर आप मेरे से पूछें, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक मानसिकता का भी एक चैलेंज है. आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्टेबल स्टैंडर्ड जॉब लेना आसान है एज कम्पेयर टू कि मैं अपना काम खुद करूँगा. आज अगर आप मेरे से भी पूछें तो I would also have to think twice to shift from a stable job like this to becoming an entrepreneur. और जिस तरीके से हमने पूरे देश में, दुनिया में ट्रैवल किया, हमने देखा है कि entrepreneurship is less about, just some skill sets. It's more about mindset. So I think that is very critical कि हमारा जो youth है, हमारे जो parents हैं, ये देखें इस चीज़ को कि हर चीज़ का जवाब एक सरकारी नौकरी नहीं होती है. आप खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं. आप किसी के यहाँ एम्प्लॉय बनने की बजाय हो सकता है हज़ारों को एम्प्लॉयमेंट दें. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग. देश के अंदर हर तरीके के व्यक्ति के लिए जगह होनी चाहिए. एंड दैट्स वेयर एंटरप्रेन्योरशिप, जो अभी तक एक बहुत अलग तरीके से देखा गया सेगमेंट था, मुझे बहुत कहते हुए ये अच्छा भी लग रहा है कि मैं जितना भी इंटरेक्शंस हम देख रहे हैं, आप देखें कि किस तरीके के पेरेंट्स आजकल सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को. कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोग लीप ऑफ फेथ लें. एंड सक्सेस एंड फेलियर कुछ नहीं होता है. वंस एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट व्हेन यू कम आउट. सो आई थिंक दैट इज हाउ राजस्थान इज बिल्डिंग अप द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम, and we're getting very good results. So any budding entrepreneur in Rajasthan who wants to set up their own firm, what are the avenues available जो सरकार के पास जाकर के maybe incubation हो, maybe venture capital हो, जिससे वो avail कर सकते हैं? वो देखिए, बहुत end to end जो हैंड होल्डिंग है वो सरकार प्रयास करती है. हालांकि हम ये शुरू से ही मानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट हैपन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. एंटरप्रेन्योरशिप तो 7 समुंदर पार और गैराजेस से बड़े बड़े ब्रांड्स निकले हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि कोई छोटी सी ग्रांट देने से कोई यूनिकॉर्न्स बनेंगे. बट हर तरीके का व्यक्ति किसी भी स्टेज में हो, उसको एक मेंटरिंग, उसको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है. चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो जिसमें एक रिकग्निशन एज रजिस्ट्रेशन मिले और कुछ आइडिएशन ग्रांट मिले जो कि हम देते हैं, या उनको विदेशों में एक्सपोजर विजिट्स पे लेके जाना हो, या उनको इन्वेस्टर को और स्टार्टअप को कनेक्ट करने के लिए कुछ हमें मीट्स करानी पड़े. हर पहलू के ऊपर राजस्थान में काम हुआ है. हम लोग इस बजट अनाउंसमेंट में भी हमने
चाहे वो ऐसे प्रोग्राम्स हों जहाँ पे स्टार्टअप्स जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, या वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको क्या ऐसी मेंटरशिप दिलाई जाए ग्लोबल सीईओ से, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. सो आई थिंक स्टार्टअप का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग भी है. देर आर फ्यू थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, बट इन अ नटशेल इट्स अ सेगमेंट विच इज डायनेमिक एंड यूथ चूंकि इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है. हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप को यूथ तक रिस्ट्रिक्ट करना भी अच्छा नहीं है. KFC जो है वो उनके जो फाउंडर थे उन्होंने 60 साल की उम्र में, शायद उससे भी ज़्यादा में, KFC जो केंटकी फ्राइड चिकन जो एक यूनिवर्सल ग्लोबल चेन है, वाज इन्वेंटेड एंड फाउंडेड बाय हिम एट दैट एज. तो मैं मानता हूँ कि एज इज अगेन जस्ट अ नंबर, क्लीशेड है लेकिन दैट्स ट्रू. एंड स्टार्टअप के लिए तो मोर सो कि आज कोई 45-50 साल की उम्र में अगर इतना टैलेंट विजडम लेके अगर स्टार्टअप खड़ा करना चाह रहा है, so these are the kind of places wherein government could facilitate. So इंद्रजीत जी, आपकी पूरी करियर जर्नी में जितने भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आपने ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट करे उसके बारे में डिस्कस करके बड़ा ही मजा आया. आई एम श्योर आवर व्यूअर्स वुड आल्सो be very proud of what our state bureaucracy can achieve if they have a conviction to do it. Now our viewers would like to know you personally, so I have a few questions to know you a little bit more, apart from as an officer how you are. So the first question is कि आपका बचपन कैसा था? How was your childhood like? बचपन जैसे सबका होता है, बहुत अच्छा. Always trying to remember those days. हमेशा चाहते हैं कि उस समय में पहुंच जाएं. It was a very normal childhood, but ये है कि it was a very balanced kind of I would say upbringing. कि modest means, लेकिन पढ़ाई में भी माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में भेजा. स्पोर्ट्स में आई वाज गुड एंड रीडिंग और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता था. एंड आई थिंक rather than just academics or sports, it was value system which we saw in the house, कि despite modest means, how to conduct yourselves, how to be satisfied in minimal means and all that. So I think till the time I was in Punjab, स्कूल में थे हम लोग तकरीबन 18 साल की उम्र तक. तब तक आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग टाइम. माता पिता के साथ रहना करना कई चीज़ें अच्छी लगती. जी. Which sports do you play? मतलब और अभी भी खेल पाते हैं आप? So I was a good player of cricket. Okay. And cricket में मैं अपने कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं 4 साल था. वहाँ पे टीम को लीड भी किया, खेला भी DU के अंदर. एंड देन जब हम लोग अकेडमी में पहुंचते हैं, तो अकेडमी सिंस मसूरी में है, IS अकेडमी, तो वहाँ पे मौसम भी और जगह की रेस्ट्रेंट की वजह से आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू बैडमिंटन. ओके. एंड बैडमिंटन फिर तब से लगातार खेल रहे हैं. बीच में आई डू रनिंग. आई थिंक बैडमिंटन एंड रनिंग आर टू थिंग्स which keep me going. So now also in service, are you able to play some sports in your spare time? For example, COVID time आएगा, तो naturally things will get a bit unsettled. But broadly, there are two things. One, I think running and jogging is something which is easy to do. And recently, I've picking up yoga. तो योगा में कोशिश करते हैं कि थोड़ा रन करके थोड़ा स्ट्रेचिंग एंड योगा को यूज कर लेते हैं. एंड आई थिंक बैडमिंटन इज समथिंग विच इज माय पैशन. तो जब कभी मौका मिलता है, एक स्टडी पीरियड ऑफ टाइम स्टेबिलिटी का आता है, देन आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स बैडमिंटन आल्सो. आपकी लाइफ में who are you influenced most by? It could be someone alive or could be someone from the history as well. So I think जैसे हमारी इंटरव्यू में भी बात हुई, I think I would say my Nana ji, my maternal grandfather, who has seen things from a very different perspective, but still he had his mind and his heart in the right place. कि उन्होंने बहुत modest means देखते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी वैल्यूज़ में, उन सब चीज़ों को बहुत अलग से देखा. And by God's grace, he's into his late 80s, early 90s. He's still around and अभी भी मैं उनसे बहुत inspiration draw करता हूँ and he still motivates me. What are the biggest values that you consider most important to you? I think integrity is something which sums up almost everything for me. अगर integrity के अलावा कोई एक चीज़ मैं कहना चाहूँ, that would be action. कि मैं दो ही चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि जो कमिटमेंट है, जो आपकी इंटीग्रिटी टू द कॉज है, अगर वो इंटैक्ट है और अगर एक्शन साथ में है, सो आई थिंक नथिंग एल्स कैन बीट दैट. तो मैं हमेशा मानता हूँ, कई बार बात भी होती है कि
क्या चीज़ चाहिए जिससे कि कोई भी चीज़ को आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं. सो आई हैव माई ओन 3H theory for myself. 3H, H stands for heart, head and hand. Heart is for the passion that you put into the cause. कि आपको IAS बनना है, आपको चेंज लाना है, आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, तो जब तक आप दिल से उस चीज़ को नहीं चाहेंगे, कोई बाहर से काम नहीं होगा. हेड इज़ फॉर थिंकिंग, कि अगर आपने कोई चीज़ सोच ली, दिल में ठान ली, वो अपने आप नहीं होगी. आपको IAS बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे. सो प्रॉपर प्लान करना पड़ता है. एंड हैंड इज एक्चुअली डूइंग, कि आपको बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बैठ के गांव में जाना पड़ेगा, चौपालें लगानी पड़ेंगी. सो अगर ये तीनों चीज़ें इसी ऑर्डर में अगर कोई भी व्यक्ति डालता है, तो मेरा मानना है कि सक्सेस जो है वो पॉसिबल है किसी भी जगह पे. I think that's truly a very inspirational, message for our viewers as well. So आपने अभी most recently also Princeton गए आप और आपने Masters of Public Policy करी. So that is very intriguing कि having served so many years in services, what was the key motivation to pursue that? And I think it's a very prestigious course. I think only 20 people in the whole wide world, government officials get through that program. So क्या मोटिवेशन था उसका? देखिए, एक्सपोजर जो है मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं मानता हूँ कि आज अगर किसी जगह पे हम पहुँचे हैं तो इट्स बिकॉज एक्सपोजर मिला. IAS का नाम नहीं सुना था जब तक दिल्ली नहीं आए थे, लेकिन वहाँ आए, देखा, समझा, अटेम्प्ट दिए. एंड नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, आई एम इन माई मिड एज नाउ, आई हैव 2 यंग चिल्ड्रन. तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कैसे एज अ फैमिली we should be exposed to a few things which probably are there, but we are not able to do that. My wife is my colleague in the IAS. तो वो अलग ज़िलों में काम करती थी, मैं अलग में काम करता था. हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो कभी भी हमें साथ भी रहने का समय नहीं मिलता था. तो मैं लगातार सोचता था कि किस प्रकार से एक बेहतर कोई एक आयाम अपॉर्चुनिटी मिले. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IAS ऑफिसर्स को 2 साल की स्टडी लीव देती है. Earlier there used to be a program जिसमें कि डायरेक्ट फंडिंग होती थी हमारी. We could choose a university, we could go there. वो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन अभी भी स्टडी लीव इंटैक्ट है. सरकार का ये कहना है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, स्कॉलरशिप लाइए और आपको छुट्टी दी जाएगी. तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जब मैं जोधपुर में था, तो तब मैंने सोचा, क्योंकि 9 साल की सेवा के बाद आप एलिजिबल होते हैं पढ़ाई पे जाने के लिए. तो दिन में मैं कोविड मैनेजमेंट करता था, रात को अपना GRE, टॉफल और एसेस लिखता था जो आपको लिखने हैं. बिकॉज ऐसा मानना है कि जहाँ पे एक प्रयास करके आपको इतना अवसर मिल सकता है, आपको जाना चाहिए. और कोशिश ये थी कि उस यूनिवर्सिटी में, चूँकि सभी लोगों को वो स्कॉलरशिप देते, सारे डिपेंडेंट्स वहाँ पे सपोर्ट होते, इसलिए केवल और केवल मैंने प्रिंसटन ही चुना. बहुत अच्छा वहाँ पे स्कॉलरशिप हमें मिला, पूरी फैमिली हमारी गई. माई वाइफ ऑल्सो डिड कोर्सेज ऑन द साइड, माई both kids went to the schools there. Wow. और वो पूरा एक फैमिली का जो 1 साल का एक्सपीरियंस था, मेरा मानना है कि उसने बहुत ऐसी चीज़ें हमें सिखाई. और इन सब चीज़ों को लेके हर व्यक्ति, चारों जो हम लोग वहाँ थे 1 साल के लिए, आई हैव सीन रिमार्केबल चेंजेस in almost all of us. How we value time, how we value togetherness, how we value professionalism. आज जिस रिन्यूड विगर के साथ हम लोग अपनी सेवाओं में, सर्विसेज में वापस आए हैं, तो कई बार आपको एक पैनोरामिक व्यू चाहिए होती है. वो आई थिंक प्रिंसटन ने हमें मौका दिया. सो आई एम श्योर वहाँ पे और कंट्रीज के भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे. जी. सो व्हाट वाज द नॉलेज शेयरिंग लाइक? आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए होंगे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए होंगे. व्हाट वाज दैट लाइक, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द परसेप्शन ऑफ इंडिया and its governance for officials from other countries? It's a very good question. I think even before I was going, I was thinking that what professionally and personally I'm going there to achieve. And whenever we plan to get into a new phase in our life, I always try to anchor it around some kind of thought process. So that time I came across a quote, and the quote was, "Unlearning is recognized as the best form of learning." कि हम लोग कई बार इतना अपने काम को और अपने आप को महत्वता देते हैं, सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वही सबसे सही है, लेकिन कई बार चीज़ों को छोड़ना, भूलना भी इम्पोर्टेंट है. ऐसे ही शायद आइंस्टाइन ने या किसी ने कहा है कि जब जो आपने सब रटा है, जब आप सब भूल जाते हैं, जो रह जाता है वही नॉलेज है, वही विजडम है.
सो उस सोच के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे, और जैसे आपने कहा कि केवल 20 लोग पूरी दुनिया से सिलेक्ट होते हैं, एंड दे हैव फिक्स्ड ज्योग्राफीज कि साउथ एशिया से एक लेंगे, यूरोप से एक लेंगे, अफ्रीका से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, इस तरीके से पूरी प्लान्ड होता है. आई थिंक मेजर पोर्शन गोज फॉर द US citizens, about 7-8 US citizens होते हैं, and people from the army background, people journalists, कोई diplomats. तो जो मिड करियर लेवल पे हम लोग वहाँ जाते हैं, इट्स मोर अबाउट पीयर लर्निंग, इट्स मोर अबाउट क्रॉस लर्निंग, स्पेशली सब्सिडाइजिंग लर्निंग टू द यंगर कोहॉर्ट्स. वहाँ पे जो अंडर ग्रेड या अर्ली ग्रेड में बच्चे होते हैं, उन लोगों की हम लोग हैंड होल्डिंग भी करते हैं. उन लोगों के लिए हमारे स्पेशल जो है वो सेशंस रखाए जाते हैं. तो मुझे आज भी याद है कि जो 1 साल का कोर्स है, उसमें आपको 45 मिनट मिलते हैं अपनी लाइफ को सम अप करने के लिए. सो एज एन MPP कैंडिडेट, आई वाज आल्सो आस्क्ड टू प्रेजेंट ऑन एनी वन टॉपिक दैट यू लाइक, एंड अगेन इट वाज अ वेरी रिफ्लेक्टिव जर्नी. बहुत सोचना पड़ा कि आप 35-40 साल के अपने जीवन को कैसे सम अप करें. Right. And there was no restriction, and I presented on something which is very dear to my heart. I presented on a topic of change, and the topic was titled Tryst with Change. And कैसे स्टेटस को इस ब्यूरोक्रेसी में हम यर्न करते हैं चेंज लाने की. इवन पीपल हु आर सो कॉल्ड पोजिशंस ऑफ पावर, इवन दे हैव टू स्ट्रगल टू गेट चेंज इन द सिस्टम. तो वो जो आप कह रहे हैं वो क्रॉस लर्निंग होती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है. और जितने भी बाकी साथी हैं, फॉर एग्जांपल आज US की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, आज इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 4 फील्ड थे जिनमें हम लोगों को सिखाया जाता था. डोमेस्टिक पॉलिसी विच इज़ ऑन US, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो कि मेरा कोर फील्ड था कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं. लॉट ऑफ कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग, चाइना आज यहाँ क्यों है, ब्राज़ील ऐसा कैसे है, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ का राइज हुआ वो कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं. ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी पे काम होता है. एंड आई थिंक अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. एंड जब आप वापस आते हैं तो एक अलग लेंस से फिर आप अपनी पब्लिक सर्विस को देखते हैं. Great. It was great talking to you, Indrajit ji. Now we come to the last section of our podcast, which is a rapid fire round. So I have a few questions, and it would be great if you can just take a few seconds to answer those. All right. Right, so let's get started. The first question is, are you a morning person or a night owl? I think morning person. Morning person. Okay. Do you prefer phone call or a text message? Phone call. If you were to visit any country, which one would you prefer? I think any of the Nordic countries, Norway, Sweden, Finland, any of these. Okay. Yeah. What is your favorite childhood TV show? Udan, Okay. What is your favorite cuisine? Dal Chawal, Okay. Any movie that you can binge watch again and again? Lakshya. Lakshya. And last one, if there was one person you would want to have a dinner with, who would that be? Barack Obama. All right. Thank you so much. Indrajit ji, it was great, talking to you, and a lot of meaningful and insightful, conversations came about. Any parting message for our viewers? I think we are on a podcast with Samagra. Samagra is in the space of governance consulting, and मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हर सिटीजन का एक अपना रोल है देश के विकास में, देश की उन्नति में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नेंस स्पेस में आएंगे और अच्छे लोग गवर्नेंस स्पेस में आएंगे, आज बहुत अच्छे पैकेजेस हम लोगों को मिलते हैं, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी. लेकिन देश को रियल टैलेंट की आज भी ज़रूरत है और आगे भी रहेगी. एंड गवर्नेंस स्पेस एक ऐसा जगह आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप रियल मीनिंगफुल वर्क अपने और अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं. सो एक ही मैसेज है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस फील्ड की तरफ भी देखेंगे, और अगर इस फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट आता है और किसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म आपको इनवाइट करता है, दैट वुड बी माय सिंपल एडवाइस. Great advice indeed. Thank you so much, Indrajit ji. Thank you Venkatesh. Thank you. Thanks a lot for watching this episode of Sushaasan. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to like, share and comment. And for more such content, subscribe to the channel and hit the bell icon.